Hello everyone, welcome to your English class again. So, today we are continuing the chapter reading The Proposal that has been penned down by Anton Chekhov. So, let's start with the recap of the previous lecture and what I have taught in the previous lecture, that the Lumov comes back. He is still deeply excited, but Natalia feels happy at his return. She treats him in a nice manner. She tries to please him by saying that it was her mistake to claim the ownership of Oxen Meadows. She agrees that the Oxen Meadows do surely belong to Lumov. Natalia tries to encourage Lumov so that he may make his proposal of marriage, but Lumov again fails to come to the point. He begins to talk about the qualities of his dog named Guess, but Natalia says that her dog Squeezer is far superior to Lumov's dog. This leads to another heated argument. Okay, so now let's continue the chapter reading. What's the matter now? अब क्या बात होगी, दोबारा से क्या हो गया? अभी तो सब कुछ ठीक होने लगा था, दोबारा से लुमोव वापस आया था. Now what's the matter? Then Natalia, Papa, tell us truly, which is the better dog, our Squeezer or his Guess? So when Chubukovs enter again, Natalia asks him to decide which dog is better, Lumov's or theirs. Lumov, Stepanovich, I implore you to tell me just one thing. Is your Squeezer overshot or not? Yes or no? Then Lumov just implore Chubukov. Implore means beg. ठीक है, वो उसको बहुत ज़्यादा क्या करता है, हाथ जोड़ता है उसको पूछता है कि you tell me just one thing. Is the Squeezer is overshot or not? Yes or no? Just answer mean yes or no. Then what Chubukov said? Chubukov said, and suppose he is, what does it matter? He's the best dog in the district for all that and so on. अब चुबुकोव बोलता है कि ठीक है, सपोज मान लेते हैं, सपोज ही इज ओवरशॉट, बट इट डजेंट मैटर बिकॉज ही इज़ द बेस्ट डॉग इन द डिस्ट्रिक्ट फॉर ऑल दैट एंड सो ऑन. वो बोलता है कि वो एक बहुत ही अच्छा डॉग है, बेस्ट डॉग है, नो मैटर if he is overshot or not. Lumov, but isn't my guess better really now? Then Lumov just questioned him another thing, that if his dog guess better really now. Don't excite yourself, my precious one. Allow me, your guess certainly has his good points. अब वो बोलता है, देखो अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को और परेशान मत करो. We just allow me to ask something about your dog, and your dog Guess has certainly good points. He is purebred. मतलब purebred means result of unmixed breed. Okay? तो वो unmixed breed का जो है एक result है तुम्हारा dog. Firm on his feet, has well sprung ribs and all that. Okay. Then he again added, but my dear man, if you want to know the truth, that dog has 2 defects. अब वो उसके डिफेक्ट्स बताता है कि पहले तो वो तारीफ कर की उसने थोड़ी सी, उसके बाद उसने बोला कि तुम्हारे डॉग में 2 डिफेक्ट्स हैं. He has 2 defects. One, that is he is getting older and older, and second one that he has short muzzle. तो muzzle means jaw, तो उसका jaw जो है वो short है. इस तरह से 2 डिफेक्ट्स निकालते हुए चुबुकोव ने लुमोव को बोला that he has 2 defects. One, he is old and he is short in the muzzle. Then Lumov said, excuse me, my heart, let's take the facts. You will remember that on the Morrisingly hunt, my guest ran neck and neck with the Count's dog, while your Squeezer was left a whole worst. Then Lumov जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है. Then he said, let's take fact. तो वो फैक्ट्स की बात करता है कि ठीक है, मुकाबला करना है तो इस तरह से मुकाबला करते हैं, फैक्ट्स ले जाते हैं. जस्ट रिमेंबर दैट ऑन द मारून सिंह स्काई
हंट माई गेस्ट रैन नेक टू नेक. ओके, मेरा गेस्ट जो था वो नेक टू नेक जो है भागा काउंट्स के डॉग के साथ. काउंट जो था वहाँ का कोई ऑफिसर काउंट होगा जिसके डॉग के साथ वो नेक टू नेक भागा था. ओके, he got left behind because the count's whipper in hit him with his whip. तो अब वो बोलता है कि वो मेरा डॉग पीछे इसलिए रह गया था क्योंकि काउंट का जो विपर था, विपर मीन हंटर्स असिस्टेंट, जो उसका असिस्टेंट था उसने उसको स्ट्रैप से मारा हुआ था, तो वो उसको थोड़ी सी लग गई थी, इसलिए वो पीछे पीछे चल रहा था. देन नेक्स्ट लुमोव सेड, and with good reason, the dogs are running after a fox when Squeezer goes and starts worrying a sheep. अब जो है फिर से लोमोव जो है एक और चीज़ ऐड करता है कि एक और रीज़न है जिससे ये पता चलेगा कि मेरा डॉग जो है तुम्हारे डॉग से फार सुपीरियर है. एंड व्हाट वाज दैट रीज़न? दैट द ऑल द अदर डॉग्स आर रनिंग आफ्टर अ फॉक्स बट द स्क्वीजर गोज एंड स्टार्ट वरिंग अ शीप. तो यहाँ पर भी उसने अलग करके बता दिया कि तुम्हारा डॉग मेरे डॉग से जो है बिल्कुल इन्फीरियर है और मेरा डॉग सबसे अच्छा है, क्योंकि तुम्हारा डॉग जो है वो शीप के पीछे भाग रहा था और बाकी के सब डॉग्स जो हैं वो फॉक्स के पीछे भाग रहे थे. यहीं पर उसने बता दिया कि फॉक्स जो है बहुत ही तेज़ दौड़ती है और शीप की स्पीड जो है बहुत कम होती है, तो वो उसके पीछे भाग रहा था. यहीं से उसकी रनिंग मूवमेंट जो है पता चलती है कितनी फास्ट है. देन Chubuko, it's not true, my dear fellow. I'm very liable to lose my temper, and so, just because of that, let's stop arguing. You started because everybody is always jealous of everybody's else dogs. अब चुबको बोलता है कि ये सब सच नहीं है मेरे प्यारे, माई डियर फेलो, इस तरह से उसको बोलता है. आई एम वेरी लायबल, तो लायबल मीन्स ट्रू. एंड सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट लेट्स स्टॉप आर्गिंग. वो कहता है कि मेरी आदत नहीं है कि मैं अपना आपा खो दूँ, और इससे अच्छा यही है कि हम क्या हो जाएं, लेट्स स्टॉप आर्गुइंग. यू स्टार्टेड बिकॉज एवरीबडी इज ऑलवेज. वो कहता है कि मैंने मान लिया. यू स्टार्टेड बिकॉज एवरीबडी इज ऑलवेज जेलस ऑफ एवरीबडीज एल्स डॉग. ठीक है, वो कहता है कि एक दूसरे के डॉग से सबको जेलस फील होता है, इसलिए तुमने ये सब बोला होगा. बट जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट एंड स्टॉप arguing each others. Okay, then yes, we are all like that. You too sir aren't blameless. अब वो उसकी बात को ऐड करता है, हाँ हम भी जो हैं सब एक जैसे हैं, आप भी सर वैसे ही हो, और आप भी कोई ब्लेमलेस नहीं हो, मतलब आप भी कोई इनोसेंट नहीं हो. You no sooner begin with this, that and the other and all that. I remember everything. अब वो बोलता है कि मुझे सब पता है, मुझे सब याद है, सब किसने क्या स्टार्ट किया था और सब एक जैसे होते हैं. वो उसकी बात को जो है कंटिन्यू करता है. सो लुमो, आई रिमेंबर टू चुबकोव टीजिंग हिम. चुबकोव जो है लुमो बोलता है हाँ हाँ मुझे सब याद है, तो चुबकोव बोलता है आई रिमेंबर टू, व्हाट डू यू रिमेंबर. ओके, तो चुबकोव जो है वो उसके ही बात को उसको टीज करता है, उसको चिढ़ाता है, उसकी बात को रिपीट करता है कि आई रिमेंबर टू, हाँ हाँ मुझे भी सब याद है. क्या याद है बताओ ज़रा, व्हाट डू यू रिमेंबर. लुमो, माई हार्ट, माई फूड्स गॉन टू स्लीप, आई कांट. अब लुमोव जो है ये सब बातें सुन के फिर से उसको प्रॉब्लम होने लगती है. एंड ही सेड माई फूड्स गॉन टू स्लीप, मेरे पाँव सो गए हैं. आई कांट मतलब मैं और बोल नहीं सकता और लड़ाई नहीं कर सकता, और फिर से अपने हार्ट को इस तरह से पकड़ लेता है. देन नेक्स्ट नटालिया ना, पहले चुबकोव उसको टीज करता है, देन नटालिया टीजिंग माई हार्ट, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ हंटर आर यू. अब वो उसको बोलता है हाँ हाँ, अब नटालिया उसको बोलती माई हार्ट, मतलब उसकी नकल लगाती है, उसको बोलती है कि किस तरह के हंटर हो तुम. यू ऑट टू गो एंड लाई ऑन द किचन. वो कहती है कि यू आर जस्ट मेड फॉर किचन, जस्ट गो देयर एंड इन द ओवन कैच ब्लैक बीटल्स, नॉट गो आफ्टर फॉक्सेस. तुम फॉक्सेस के पीछे मत जाओ, वहाँ पे उनका शिकार मत करो, ब्लैक बीटल्स पकड़ो किचन में और उनका शिकार करो, तुम उसके लायक हो. माई हार्ट, दोबारा से उसको यही बोलती है, दोबारा से उसको टीज करती है. We will conclude the whole chapter in the next lecture. Okay, so
थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।